Good morning to all of you. Welcome to online class of social science. Today we will study geography chapter 6, natural vegetation and wildlife, page number 39. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills, comprising sal and teak, slowly disappeared. She could see all she could see tall trees with thin pointed leaves and cone shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed bloom of bright flowers on tall trees. They were the rhododendrons. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. सलीमा अपने समर कैंप के कारण बहुत एक्साइटेड थी। अपने क्लासमेट्स के साथ वह हिमाचल प्रदेश स्थित मनाली गई थी। उसे याद आया कि किस प्रकार बस जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई की ओर जा रही थी, लैंडफॉर्म और नेचुरल वेजिटेशन में चेंज आता जा रहा था। वह पहाड़ों की ढलानों पर नोकदार पत्तियों वाले कोन शेप्ड ऊंचे पेड़ों को देख सकती थी। उसे पता था कि इन पेड़ों को कोनिफेरस ट्रीज कहते हैं। उसने इन पेड़ों पर ब्राइट कलर्स वाले फूल भी देखे। इन्हें रोडोडेडॉन कहते हैं। जब वो मनाली से रोहतांग पास की जर्नी कर रही थी तो उसने देखा कि लैंड छोटी घास से कवर्ड है और कहीं कहीं बर्फ भी थी। फ्रॉम सलीमा's ऑब्जर्वेशन we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetations. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. सलीमा के वर्णन के अनुसार हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लैंड की ऊंचाई और वेजिटेशन के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मौसम भी बदलता जाता है और इसी कारण नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होता जाता है। वेजिटेशन की ग्रोथ टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। इसी के साथ वेजिटेशन जमीन की ढलान और सॉयल की थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows. इन्हीं फैक्टर्स में परिवर्तन के कारण टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता है। जनरली नेचुरल वेजिटेशन तीन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, फॉरेस्ट, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. Forest means जंगल। जिन स्थानों पर बारिश और धूप भरपूर होती है उन स्थानों पर जंगल उगते हैं। बारिश और धूप की मात्रा के आधार पर डेंस और ओपन जंगल डेवलप होते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 40. Grasslands which grow in the region of moderate rain. Shrubs, thorny shrubs and scrubs grow in the dry regions. मॉडरेट रेन वाले स्थानों पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ड्राई एरियाज में कांटेदार श्रब्स और छोटी झाड़ियां उगती हैं। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions, and many more. Salima realized
The Himalayas have almost all variety of vegetation, which one can see while moving from the equator to the polar region. सलीमा ने हिमाचल ट्रिप का एक्सपीरियंस अपने फादर को बताया। उसके फादर वर्ल्ड के कई स्थानों पर घूम चुके थे। उन्होंने सलीमा को उनके देखे हुए कई स्थानों की वेजिटेशन के बारे में बताया। उन्होंने सब पोलर रीजन्स के कोनिफेरस फॉरेस्ट, डेजर्ट की कांटेदार झाड़ियाँ और ह्यूमिड रीजन्स के हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में सलीमा को बताया। सलीमा को समझ में आया कि हिमालय रीजन में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाने पर मिलती है। Tropical evergreen forest. These forests are also called tropical rainforest. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये घने जंगल इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास पाए जाते हैं। इक्वेटर के पास स्थित होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है और पूरे वर्ष यहाँ पर हैवी रेन होती रहती है। इस रीजन में कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती हैं। इस कारण ये जंगल एवरग्रीन कहलाते हैं। पेड़ इतने घने और पास पास होते हैं कि दिन के समय भी धूप जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। हार्डवुड ट्रीज जैसे कि रोजवुड, इबोनी, महोगनी जैसे पेड़ इन जंगलों में पाए जाते हैं। डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। ब्राजील के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने विशाल और घने हैं कि उन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। जंगल में उगे हुए पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे यूज के लिए ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, जिस कारण एटमॉस्फेयर का बैलेंस बना रहता है। एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, इज फाउंड इन द tropical rainforest. It can kill and eat a large animal such as a crocodile. वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक एनाकोंडा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह इतना बड़ा होता है कि क्रोकोडाइल जैसे एनिमल्स को निगल जाता है। Now come to the page number 41. Tropical deciduous forest. Tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. These regions experiences seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem and shisham. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional material. Tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the common animals of these regions. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मानसूनी फॉरेस्ट होते हैं। ये जंगल इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका के बड़े भागों में पाए जाते हैं। इन एरियाज में सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। बारिश के पहले के गर्म मौसम में पानी की कमी होने से ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन जंगलों में हार्डवुड ट्रीज जैसे साल, टीक, शीश, शम और नीम आदि पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल आदि बनाने के काम आते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर और मंकी जैसे जानवर इन जंगलों में पाए जाते हैं। Temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal regions. They are commonly found along the eastern margins of the
continents, that is in Southeast USA, South China, and in Southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में स्थित हैं। कॉमनली ये कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन्स पर पाए जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एवं साउथ ईस्ट ब्राज़ील। इन फॉरेस्ट में सॉफ्ट और हार्डवुड ट्रीज दोनों ही पाए जाते हैं, जैसे ओक, पाइन और यूकेलिप्टस एक्सेट्रा।